Well, in fact, you heard what they all had to say over there. Kapil Sibal also states that this is all pre-planned by the Aam Aadmi Party, and their main aim is over here to split the secular votes in order to help the BJP. But now, after Arvind Kejriwal sat there praying at Mahatma Gandhi's memorial, he spoke to the media. Let's listen into what he had to say. सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमला किया है, मैं उन सबको माफ करता हूँ। मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है उनके लिए, और ना ही, क्योंकि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है, ये व्यवस्था से लड़ाई है। व्यवस्था को बदलने के लिए निकले हम लोग, और मुझे लगता है वो भी उस व्यवस्था के शिकार है। एक दो जगह से जहां से खबर आई है कि कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं कई बार लिख के दे चुका हूं दिल्ली पुलिस को कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। उसके बावजूद आप देखते हैं कई सिक्योरिटी वाले मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये मेरे लिखने के बावजूद है। अब अगर वो आसपास सिक्योरिटी वाले भेजें तो मैं उनको हटा नहीं सकता, लेकिन मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी मेरा भगवान है। जब तक In fact, you can see what happened in Haryana on the 28th of March. A person came and hit him on his neck. Now there too, the Aam Aadmi Party supporters caught hold of him, assaulted that man and then handed him over to the police. And again on April 4th in Dakshinpuri, he was punched. And finally today in Sultanpuri, he was slapped. Now in the past, he has had ink, mobile oil and even an egg hurled at him. Now we must remember, in today's case, it was an auto rickshaw driver who did that. Now thousands of auto drivers in Delhi actively campaigned for Kejriwal before the Delhi state elections in December last, in which the Aam Aadmi Party scored an impressive second spot. In fact, that is the man in a blue shirt. तो हरामजादा है, कुत्ता है। क्या क्या झूठ बोला उसने? झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया, और आदमी है, 3 करोड़ दिल्ली में है, 2 सबके लिए सबसे बनाया, खाता गरीब आदमी। We had to beep that because he was in fact abusing Arvind Kejriwal. He's stating that Arvind Kejriwal has basically lied to the people. He's the auto rickshaw driver who went about after garlanding the Aam Aadmi Party chief. He struck him hard on his left cheek. He was then beaten up by Aam Aadmi Party supporters before the police came and took him into their custody. In fact, if you have just tuned in, Chief of Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal was slapped today by an auto rickshaw driver whom you can see there on the right of your television screen. Now, this was while he was campaigning in Sultanpuri, northwest Delhi. Later on, Arvind Kejriwal was seen praying at Mahatma Gandhi's memorial with a swollen left eye. Now, he was in an open jeep, and a man in a blue shirt, who has been identified over here now as an auto rickshaw driver, reached up and first garlanded the Aam Aadmi Party chief, and after that he struck him hard on his left cheek. There you can see on the left. He was immediately thrown down from the jeep, and Aam Aadmi Party supporters got down, assaulted him before he was handed over to the police. क्या क्या झूठ बोला उसने? झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया, और आदमी है। In fact, Modi is addressing a rally live in Mysore. Let's check that out. कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था
कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते हैं। और जब राजीव गांधी की सरकार थी तब पंचायत में भी कांग्रेस थी, नगर पालिका में भी कांग्रेस थी, महानगर पालिका में भी कांग्रेस थी, राज्यों में भी कांग्रेस थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। हम भाजपा वाले तो कहीं नजर भी नहीं आते थे। चारों तरफ कांग्रेस थी। और उस समय राजीव गांधी ने कहा था, दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचते हैं। मैं जरा साहजादे को पूछना चाहता हूं, मैं मैडम सोनिया जी को पूछना चाहता हूं, ये राजीव गांधी ने कहा था दिल्ली से रुपया निकलता है 15 पैसा हो जाता है। वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घिसता था? वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस घिस के 15 पैसा बना देता था? ये भ्रष्टाचार, ये लूट, ये बेईमानी का पैसा, ये कांग्रेस के डीएनए में है, डीएनए में है। पीढ़ी बदल जाए, नेता बदल जाए, भाषा बदल जाए, भाषण बदल जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीयत नहीं बदलती, उनके डीएनए में कोई फर्क नहीं आता। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का जिस प्रकार से अवमूल्यन किया है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक परिवार की आरती उतारने में पागल हो गई है। अगर एक कांग्रेस वालों ने 125 करोड़ देशवासियों की आरती उतारी होती तो ये कांग्रेस की हालत न हुई होती और देश ऐसा बर्बाद न हुआ होता। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ये कहती है, शहजादे जी ये कह रहे हैं कि देश को एक चौकीदार की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं 125 करोड़ चौकीदार जो ये। मैं जरा शहजादे को पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? मैं शहजादे को पूछना चाहता हूं, क्या करगिल की लड़ाई में शहीद हुए देश के जवानों की विधवाओं के लिए मुंबई में जो आदर्श हाउसिंग सोसाइटी बनी थी, शहीदों की विधवाओं से जिन्होंने मकानों की चोरी कर ली, शहीदों की विधवाओं के मकानों को अपनी साली को, अपनी सास को उनके नाम कर दिए, ऐसे उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और जिसको इस बार आपने चुनाव में खड़ा किया है, क्या ये अशोक चौहान चौकीदार होंगे क्या? जवाब दो शहजादे जी, किन चौकीदारों को आप देश देना चाहते हो? देश जानना चाहता है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के खेल को समझो। वे दूध की रखवाली का काम बिल्ली को ही देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अब ये देश दूध की रखवाली का काम बिल्ली को देने के लिए कतई तैयार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज
मेरे मैसूर वासियों, राजनेता आपने बहुत देखे हैं, भाषण भी बहुत सुने हैं, हर प्रकार के वादे आपके कानों में गूंजते हैं। देश वादों से तंग आ चुका है। देश को इरादा चाहिए और मैं इरादा लेकर के आया हूं। In fact, Narendra Modi, BJP's prime ministerial candidate and Gujarat chief minister over there addressing a rally in Mysore. He's expected to reach Bengaluru later on this evening. Over there, he's clearly stated that corruption is in the DNA of the Congress and the results are all clear, that the BJP will win this time around. He also went on to speak about how the Congress has backstabbed Kargil war heroes in the scam that took place, the other scam in Maharashtra. And he also questioned as to why the entire Congress dances to the tunes of just one family. और ये मेरा संकल्प है, अगर आप मुझे मौका देंगे, मैं भारत की जनता की तिजोरी पर अब कोई